Hello everyone. Today let us start marketing management part 4. Okay. Today we will be studying about the new product development. Okay. Let's start. Yeah. From here. I hope you have cleared all yesterday's classes and all. If you have any doubt, do comment me in the comment section box. New product development means here introducing a new product in our market. Okay. Here you may be knowing that innovation and invention, right? Innovation and invention meaning. Okay, let's see the difference between that one. Innovation means introducing any, so invention means introducing any new product in our market which was not introduced before in the market. For example, like telephone, you have seen, right? It was not introduced before in the market. Then innovation means at the in the present product itself you're adding any extra features, or you're introducing any new development in that. It may be like phones, right? From television, that box setup you have seen, from that to the phone, you can, I think you can imagine that product. I'll show in the next slide also. So this is the meaning of invention and innovation. So in the new product development, we can bring the product in the innovation form also, or in the invention form also in the market. There are 8 processes in the new product development, that is idea generation, idea screening, concept development and testing, marketing development, business analysis, product development, test marketing, commercialization. So these are the 8 steps in the new product development process. Idea generation. So here idea is generated about a product. So this is the first stage in the new product development. Idea can be generated by, you can see idea how it will be generated by the internal sources or external sources. So internal sources, it can be by the R&D, right, research and development department, or any employees, them. By external, by customers maybe, or by the distributors, right? Those can introduce any, they have idea about a product, they can give an idea, right? So inviting suggestion from customers or employees, brainstorming suggestion for new product ideas, searching in different markets like national, international, for new product ideas. We can see even the different markets also, any new idea if emerge in our mind about the product, getting feedback from the agents, dealers about service offered by the competitors. So if any product is introduced by the competitor also, from that product also we can get any idea, new idea to our product, to our company also, to get a new product, right, in our market. Studying the new products of the competitors, what all the competitors are producing the products, new products, we can even study, and we can find out the weakness in that product, and we can introduce a new product competing to that product. Okay, so here you can see innovation example, like wheel, it was then this one bicycle, like have been introduced. Next you can see here web, right? I'll erase it. Or World Wide Web, from through that innovation, it's like Facebook, right? Facebook, it's have been done. So this is the example for invention and innovation. I hope you have cleared the meaning of idea generation. Next we'll see next process, idea screening. Here idea screening, in this process, when the idea is generated about a product, then we'll screen it. We'll screen means we will accept it or reject it. We'll be having so many ideas about the product, right? Introducing a new product. So there will be like any 10 ideas. We should select only one in that, right? And we have to reject any 9. So we will screen our idea. Most companies have an idea committee. There will be a committee in the company, so that they analyze it and they reject or accept it. They select the good ideas and reject the bad ideas here. Before selecting or rejecting any idea, they will analyze the following
questions they'll consider. Is it necessary to introduce a new product in our market? Whether it is necessary or simply a time waste it is. Can the existing plant and machinery produce new product? The machineries or plant which are having in a company, can it produce new product? Can the existing market network sell a new product? The present market which is there, can it sell the new products or not? Whether when can we new product the new product break even? So when the new product will be at a profit point? If the answers of all these questions are positive, then the idea of new product development is selected, or else it is rejected. Okay, so in this way we will screen the ideas. Next is, while screening we can see two types of errors. First one is drop errors. What is drop errors? Error which occurs when the company rejects on one really good idea having potential. See, example, एक आइडिया कोई बहुत अच्छा था, ओके, it has been rejected by the company. If the company has accepted it, then a company would get a high market share and profit, but company had rejected. So which error it is called as? Drop error it is called. Then go error means what? Error which occurs when the company permits and facilitates a poor idea. जिसका आइडिया बहुत पुअर है बट फिर भी उसको प्रमोट कर दिया, परमिट कर दिया कि भाई हाँ ठीक है, आइडिया अच्छा है, then the company will also fail in the market, right? So these are the two errors in the idea screening. Third one is concept testing. आइडिया जनरेट हो गया, आइडिया स्क्रीनिंग कर लिए, नेक्स्ट हम उस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करते हैं कि भाई ये कैसा, ये फेल होगा या सक्सेस होगा अपने मार्केट में. कॉन्सेप्ट टेस्टिंग इज डन आइडिया आफ्टर आइडिया स्क्रीनिंग. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम टेस्ट मार्केटिंग. इन दिस स्टेज ऑफ कॉन्सेप्ट टेस्टिंग द कंपनी फाइंड आउट्स. कंपनी क्या फाइंड आउट करती है? वेदर कंज्यूमर अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट आइडिया और नॉट. कंपनी जो कंज्यूमर है हमें हमारा प्रोडक्ट उनको बताते हैं, वो आइडिया है वो अंडरस्टैंड कर रही है कि नहीं कर रही है. वेदर द कंज्यूमर नीड न्यू प्रोडक्ट, वेदर रियली कस्टमर नीड अ न्यू प्रोडक्ट और नॉट. हाउ द रिस्पॉन्स इज दैट आफ्टर द शोइंग द न्यू प्रोडक्ट देम एंड आफ्टर गेटिंग टेस्ट. Whether the consumer will accept or not, whether the consumer will accept the product or not which is given by us. Here small scale group of consumer is selected. यहाँ पे क्या होता है कॉन्सेप्ट टेस्टिंग में, लाइक ग्रुप ऑफ पीपल को लेते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है उनको यूज़ करने के लिए देते हैं और उनको फिर देखते हैं, उनसे फीडबैक पूछते हैं कि भाई do you really satisfied by this product and what are the any changes we need to make in the new product. If they liked the product, then only next step will be taken. Okay, then only the product is accepted. Otherwise company will make changes and it will also then if then also the customers doesn't react to our product, then our company will never introduce that product in the market. Okay, so the concept testing is done to find out the customer reactions towards a new product के बेस पे क्या कैसे रिएक्शन है, वो स्मॉल ग्रुप ऑफ में उनको प्रोडक्ट देख के फिर पता चल जाता है. इफ़ द मोस्ट ऑफ कंज्यूमर्स लाइक द प्रोडक्ट देन बिजनेस एनालिसिस इज डन. ओके, नेक्स्ट विल सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट. नेक्स्ट स्टेज कौन सा है? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट. हम लोगों ने कॉन्सेप्ट टेस्टिंग कर दी, फिर हम लोग मार्केट के स्ट्रैटेजीज ढूंढते हुए कैसे हम लोग अपने प्रोडक्ट को डेवलप करें. नेक्स्ट स्टेप इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस इज द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट. व्हेन प्रॉमिसिंग कॉन्सेप्ट हैज़ बीन डेवलप्ड एंड टेस्टेड, it's a time to design an initial marketing strategy for new product based on product concept for introducing new product to the market. हम लोग अपना अपना डिज़ाइन बनाएंगे अलग, कैसे हम लोग इसको मतलब सब अट्रैक्ट करें कस्टमर्स को, नए स्ट्रैटेजीज कैसे बनाए, इसके प्राइस कैसे डिसाइड करें हम लोग. तो हम लोग अपना ओन प्लान और स्ट्रैटेजी बनाते हैं. मार्केटिंग स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स एंड शुड बी फॉर्मुलेटेड केयरफुली. ये 3 पार्ट्स कंसिडर करती है. अ डिस्क्रिप्शन ऑफ टारगेट मार्केट, planned value proposition, sales, market share and profit goals for first few years. थोड़े साल में जब हम ये सोचते हुए मार्केट स्ट्रैटेजी देखते कि भाई एटलीस्ट 1 साल में हमें कितने पीपल को टारगेट करना है, कैसे हमें उन पर ट्रस्ट बनाना है अपने प्रोडक्ट के बेस पे, कितना हमें सेल करना है, कितना हमें मार्केट शेयर बढ़ाना है अपने कंपनी का, तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा. तो ये स्ट्रैटेजीज हम लोग अपने इसमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में ऐड करेंगे. एंड आउटलाइन ऑफ प्रोडक्ट्स प्लान, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग बजट फॉर द फर्स्ट ईयर. कितना हम लोग प्राइस अपने न्यू प्रोडक्ट में
लगाएंगे, कितना हम लोग इसमें फ़ंड डालेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा प्रोडक्ट्स का, मार्केटिंग कितने हम लोग, कितना बजट पे हम लोग करेंगे, हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। द प्लान लॉन्ग टर्म सेल्स, प्रॉफिट गोल्स एंड मार्केट मिक्स स्ट्रैटेजी। तो हमें इवन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों प्लान्स को अपने इसमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में ऐड करना पड़ेगा। ओके, आई होप यू हैव क्लियर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस। हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, बिजनेस एनालिसिस करते हैं। दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हियर डिटेल बिजनेस एनालिसिस इज डन। कंपनी फाइंड्स आउट वेदर द न्यू प्रोडक्ट इज कमर्शियली प्रॉफिटेबल। और हमने पूरा प्रोडक्ट आइडिया मिल गया हमें, ठीक है। फिर स्क्रीनिंग कर ली हम लोगों ने, फिर कॉन्सेप्ट टेस्टिंग कर दी, फिर हमने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बना ली। अब हम क्या करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे कि रियली हम जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट विच वी आर ब्रिंगिंग इन अ मार्केट इज गिविंग प्रॉफिट और नॉट, विल इट गिव प्रॉफिट और नॉट, और इट विल फेल इन द मार्केट। वी हैव टू एनालाइज फर्स्ट ओनली. Then what are the questions which we need to analyze? Whether the new product is commercially profitable or not, what will be the cost of new product, how much the cost will give to that product, is there any demand for the new product? Like clearly आप लोग सोचो, अगर कोई मार्केट में डिमांड ही नहीं हो कोई प्रोडक्ट पे और हम लोग न्यू प्रोडक्ट टाइप थ्रू हम लेके आ गए, तो ऑब्वियसली हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, है ना। और तब तक और कॉम्पिटिटर्स इसके और मजाक बन जाएगा अपना, राइट, पूरी कंपनी का। सो वी हैव टू सी डिमांड है कि नहीं। आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम्पल में एक नैनो कार आई थी जो बहुत फेमस हुई थी, राइट, कि भाई इवन मिडिल क्लास पीपल कैन हैव ए कार। सो ये बहुत क्लिक हुआ था उस टाइम पे। वेदर दिस डिमांड इज़ रेगुलर और सीजनल, ये जो हम डिमांड जो प्रोडक्ट ला रहे हैं वो रेगुलरली है या अपने मार्केट में, या सीजनल डिमांड है वो। आई थिंक सीजनल डिमांड के बारे में मैंने बताया हुआ है इन द लास्ट क्लासेस। आज आपको टाइप्स ऑफ डिमांड देखना हो तो पार्ट 2 मार्केटिंग मैनेजमेंट वो मेरी क्लास देख लेना, ठीक है। आर देयर आर एनी कॉम्पिटिटर्स ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, सेम जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके कॉम्पिटिटर्स है या नहीं हमारे पास में। हाउ द टोटल सेल्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट भी, कितने टोटल सेल्स करना पड़ेगा हमें, व्हाट विल बी द एक्सपेंसेस ऑन द एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन, हाउ मच प्रॉफिट हमें न्यू प्रोडक्ट अर्न करके देगा, वो सब चीज़ें हमें ध्यान में रखकर बिजनेस एनालिसिस करना पड़ेगा बिफोर इंट्रोड्यूसिंग आवर प्रोडक्ट इन द मार्केट। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब क्या हुआ, अब हम क्या करेंगे, रियल बेस में हम लोग अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, हम प्रोडक्ट बनाएंगे। एट दिस स्टेज कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। इट विल टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट द न्यू प्रोडक्ट। हियर our product is selected and we started to manufacture our product. Production department will plan how to produce the product. Marketing department will plan to distribute the product here. Finance department will provide finance for the introducing of new product. Advertising department will advertise our product about a new product. However, all this done at the small case for टेस्टिंग मार्केट। यहाँ पे हम लोग ये प्रोडक्ट जब हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, यहाँ पे हम लोग जब मैन्युफैक्चर करेंगे तो स्मॉल बनाएंगे, मतलब स्मॉल स्केल में। हम लोग इतना लार्ज स्केल में हम लोग प्रोड्यूस नहीं करेंगे ताकि हमें लॉस ना हो। हम लोग मार्केट में ला रहे हैं तो उसको पहले हम स्मॉल स्केल में इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर हम लोग लार्ज स्केल में इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट। नेक्स्ट टेस्ट मार्केटिंग। अब हम टेस्ट कर रहे हैं। दिस इंक्लूड्स टेस्टिंग द प्रोडक्ट एट स्मॉल स्केल इन अ वेरी स्मॉल मार्केट। छोटी सी जगह पे स्मॉल मार्केट में हम लोग अपना प्रोडक्ट टेस्ट करेंगे इंट्रोड्यूस करके। इफ़ इट इज़ सक्सेसफुल इन द स्मॉल मार्केट देन इट इज़ इंट्रोड्यूस इन द लार्ज मार्केट। इफ़ देर आर मोर रेस्पॉन्स in the market for new product, then we'll introduce that product in the large market. However, if product fails, company tries to find out the reason for its failure. अगर हमारे मार्केट में ये प्रोडक्ट फेल हो गया तो कंपनी पूरा देखिए कि भाई क्या इसमें चेंजेस करना चाहिए और क्यों फेल हुआ ये प्रोडक्ट। इफ़ अगेन इट फेल्स, इफ मेक्स नेसेसरी चेंजेस इन द प्रोडक्ट एंड री इंट्रोड्यूस इन द स्मॉल मार्केट। अलग अलग वापस थोड़ा बहुत चेंजेस करके हम लोग री इंट्रोड्यूस करेंगे स्मॉल मार्केट में। फिर again if it fails, then the company
स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड टेस्ट मार्केटिंग रिड्यूस. टेस्ट मार्केटिंग हम लोग क्यों करते हैं? बिकॉज इट रिड्यूस रिस्क. हैज आई सेड बिफोर, इट रिड्यूस रिस्क ऑफ लार्ज स्केल मार्केटिंग. पहले हम लोग लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर देंगे अपने प्रोडक्ट को, तो कितना अमाउंट वेस्ट होगा, कितना टाइम वेस्ट होगा, कितना मतलब टाइम वेस्ट के साथ साथ हम लोग कितनी अपना पूरा डिपार्टमेंट इसमें जुड़े रहते, तो उनका सब आइडिया सब वेस्ट हो गए उसमें. फिर इट इज़ सेफ्टी डिवाइस. ये टेस्ट मार्केटिंग इज़ वेरी सेफ्टी डिवाइस. इट्स टाइम कंज्यूमिंग. टाइम लेता है कोई प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए, बट इट इज़ वेरी एडवांटेज एंड मोस्टली डन ऑन कॉस्टली प्रोडक्ट. जब कॉस्टली प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है तब इतना सारा प्रोसेस हम देखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज़ कमर्शलाइजेशन. अब टेस्ट मार्केटिंग में हमारा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ गया, राइट. तो फिर हम कमर्शलाइज करें. कमर्शलाइज मतलब हम लोग उनको सारी दुनिया को ढिंढोरा पीट देंगे, हमारा ये प्रोडक्ट बन गया है और आप इसको परचेज कर सकते हो. इफ़ अबोव द स्टेजेस आर सक्सेसफुल, देन कंपनी इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इन लार्ज स्केल. कंपनी मेक्स लार्ज इन्वेस्टमेंट इन द प्रोडक्ट. कंपनी क्या करेगी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देगी. इट प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट न्यू प्रोडक्ट एट ह्यूज स्केल. इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, सब पे हमारा प्रोडक्ट छा जाएगा वहाँ पे. इट एडवर्टाइज द न्यू प्रोडक्ट्स ऑन मास मीडियाज, न्यूज़पेपर्स, ऑनलाइन वेबसाइट में सब हमारे प्रोडक्ट्स को अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगी. आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल, अभी आजकल थोड़े टाइम पे वैदिक, ठीक है, वैदिक ऑयल्स आ रहे हैं, राइट, विच इज़ प्रोवाइडिंग हेयर प्रॉब्लम ऑयल. ओके, हेयर प्रॉब्लम कुछ हो तो वो ऑयल, शैम्पू वगैरह सब देते हैं. पहले बहुत मतलब एक दो कहीं मतलब ठीक है, इतना नहीं आता था. अब सारे एडवर्टाइज में उसके बारे में बता रहे. इवन मीशो यू कैन सी, राइट. मीशो पहले इतना मतलब पॉपुलर नहीं था कंपनी, बट अब यू कैन सी इन द एड ऑल्सो, बिकॉज उन्होंने कैसे किया, पूरा ये प्रोसेस उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपने कंपनी में. फिर उन लोगों ने कमर्शलाइज. अभी देखो आप, इवन टीवी एड्स में मीशो के आने लग गए. इवन यू कैन सी एनी सोशल मीडिया पोस्ट में भी आप लोग कितने सारे इसमें स्पॉन्सर्स करते हैं, राइट. सो दीज आर द लाइक यू कैन हैव एन एग्जाम्पल, राइट, अबाउट द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस. ओके. नेक्स्ट, रिव्यू ऑफ मार्केट परफॉर्मेंस. सो टिल हियर हम लोग क्या हुआ, मार्केट पे अपना प्रोडक्ट ला दिए, वहाँ पे टेस्ट सब हो गया, फिर हम लोग कमर्शलाइजेशन कर दिया. अब हम लोग क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे मार्केट परफॉर्मेंस का. कंपनी रिव्यूज़ द परफॉर्मेंस. इज़ अ न्यू प्रोडक्ट एक्सेप्टेड बाय द कंज्यूमर्स. आर द डिमांड, सेल्स एंड प्रॉफिट्स आर हाई. कंज्यूमर सेटिस्फाई आफ्टर सेल्स. कंज्यूमर सच में खुश है क्या अपने प्रोडक्ट से या नहीं है. आर द मिडल मैन आर हैप्पी. आर कॉम्पिटिटर्स इंक्लूडिंग सिमिलर न्यू प्रोडक्ट. हमारा प्रोडक्ट देख के कॉम्पिटिटर्स भी नया नया प्रोडक्ट सेम इसके जैसा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्या. अगर कर रहे हैं, हम लोगों को ये सब ध्यान पे रख के रेगुलर चेंजेस हमें करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट्स पे, वरना हमारा प्रोडक्ट फेल हो जाएगा. तो we have to review our market performance also. We have to take feedback by the customers also. We have to maintain customer relationship with the customers, so that they can give us feedback, and they can give the feedback about what are the needs and wants of the customers. Okay, I hope you have cleared the meaning of these all new product development process. If you have any doubt, do comment me on the comment section box, and do subscribe my channel. I have even newly started a Telegram channel where I'll upload all these my PPT, so that you can study for your exams and for your any PPT presentation also. Even there will be a quiz after two days. I'll upload that also. So do subscribe my Telegram channel also and my YouTube channel also. Thank you everyone.